slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. एक शॉर्टकट की है वो मैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दिस इज अ कमेंट, ओके. तो मैं कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूंगा, या आप अगर मैकबुक यूजर हैं तो आप कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे, तब आपको वो दिखेगा कि वो कमेंट बन चुका है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, तो अगर अब आपने ध्यान दिया हो तो एक चीज मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं करी, जिसमें है ये इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है, तो इस इन्वर्टेड कॉमा की हम बात करते हैं. तो सर देखो, जब हम किसी को किसी लैंग्वेज में समझाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं सिंपल सा कि आप मुझे बताओ 0420 एक रुपीज़ है, 0420 रुपीज़ और 0420 OTP, आप मुझे बताओ पहले वाले नंबर को आप कैसे पढ़ोगे. तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर 420 या 420, और दूसरे वाले नंबर को बोलेंगे 0420. ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब आप पहले वाले यानी कि जिसमें बोल रहा हूँ 0420 और यहाँ पर आगे रुपीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने उसको एज अ वैल्यू कंसिडर किया, तो बन गए 420 रुपये. लेकिन वहीं पर जैसे ही वहाँ पर 0420 आगे OTP लिखा हुआ है, वो है वन टाइम पासवर्ड, यानी कि एक मैसेज यूज़र के लिए, तो आप उसको इनकम्प्लीट रीड नहीं कर सकते. ठीक है, तो जब भी आप किसी भी नंबर को एज अ टेक्स्ट एज अ मैसेज कंसीडर करते हो तो ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है, आप उसे हटा नहीं सकते. लेकिन जैसे ही आपने उस नंबर को एज अ वैल्यू कंसीडर किया तो आप उसमें ज़ीरो लगा नहीं सकते. इसको आपने एज अ रुपीज़ और एज अ OTP समझा, लेकिन पाइथन में इसी को इन्वर्टेड के कॉमा के फॉर्मेट में समझते हैं. यानी कि अगर मुझे यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं 5 + 5 लिख दूँ, ठीक है, और मैं रन करूँ तो यहाँ पे 10 आएगा, करेक्ट है.
लेकिन आपने सुना होगा एक मूवी है 1 1 और 1 11 है ना, तो अगर 1 और 1 11 बनाना हो, यानी कि 1 और 1 2 नहीं बनाना है, मुझे उन्हें मर्ज करना है, तो यही सेम नंबर आपको एज अ टेक्स्ट कंसीडर करना पड़ेगा। तो इनको कैसे लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 5 प्लस फिर से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 5 का डन, ये हो गया 55। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझें, तो जब भी आप कोई भी टेक्स्ट प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं तो उसको आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है। और सेम अगर कभी भी आप नंबर्स लिखते हैं तो आपको वो इन्वर्टेड कॉमा की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉट रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्लियर है। अब सवाल जब मैंने बोला कि इजी लैंग्वेज में टेक्स्ट है, सर प्रोग्रामिंग में क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग में इसे बोलेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक्सेल के सॉरी तो पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके टेक्स्ट को स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है, सेम नंबर्स में भी अलग अलग वेराइटी होती है। अभी मैं नंबर को एज अ इंटीजर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रहे, इंटीजर फ्लोट, बाकी से अब लोग बोलेंगे सर फ्लोट भी तो बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, लेकिन अभी नंबर को हम एज अ इंटीजर लेके चल रहे हैं, जैसे 9 10 11 500,000 ये सारी इंटीजर्स हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आपने समझा कि अगर मैं यहाँ पर जब ऊपर लिखा था गुड इवनिंग, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्यों लिखा है, क्योंकि सर ये एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको एज अ नंबर यहाँ पे दिया तो ये क्या है, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो मर्ज हो गया, और इन्वर्टेड कॉमा में नहीं था तो यहाँ पर ये टोटल हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे प्रिंट लिखा 500 प्लस 500 रन करेंगे तो ये 1000 हो गया। सेम प्रिंट, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में 500 प्लस और 500 रन करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों हमारे मर्ज हो गए। एक बार क्या हुआ कि मेरे एक जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि सूरज अगर हमें मेरा नाम सूरज है बाय द वे, ठीक है, तो मेरे प्रोफेसर ने एक बार मुझसे पूछा कि सूरज अगर हमारे पास टेक्स्ट और नंबर दोनों ही हों और उनको अगर मैं प्लस साइन से यूज़ करूं तो क्या आउटपुट आएगा। तो ये एक्चुअली पूरे क्लासरूम से पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने या बाकी उन लोगों ने, किसी ने बोला सर टोटल हो जाएगा, किसी ने बोला मर्ज हो जाएगा, किसी ने बोला कुछ कुछ बोला, और सभी के आंसर लगभग गलत है। ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी, 8-9 साल पुरानी बात है ये। ठीक है, तब उस केस में तो वही सेम सवाल मैं आपसे भी आज पूछ रहा हूँ जो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था कि नंबर अगर हो और साथ अगर एक टेक्स्ट हो और दोनों को अगर मैं प्लस साइन से मर्ज या टोटल करने की कोशिश करूँ तो आउटपुट में क्या आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहीं पर प्रिंट के अंदर 5 एक इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया और एक 5 मैंने नॉर्मल लिख दिया तो आउटपुट में क्या आएगा, आंसर आएगा एरर। रीजन सर, रीजन यहाँ पर है टाइप एरर में, जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग। कंकैटिनेट का मतलब होता है मर्ज करना, दो एलिमेंट को मर्ज करने के लिए हम कंकैटिनेट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर है कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, नॉट इंटीजर्स। सी कि सर दो कंकैटिनेट ही मर्ज हो सकते हैं, नंबर्स नहीं। और यहाँ पर पाइथन वही कह रहा है कि भैया टेक्स्ट तो है लेकिन इंटीजर का हो नहीं रहा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमें इसको भी यहाँ पर एज अ टेक्स्ट कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा टेक्स्ट बनाएंगे और रन करके 55 में कवर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नंबर 2, क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा ही इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है? नहीं, आप डबल लगाएं, सिंगल लगाएं या ट्रिपल लगाएं, तीनों ही आपके चल रहे होंगे स्ट्रिंग के साथ। एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा हेलो। ठीक है, रन किया तो यहाँ पे चल गया सेम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो, ये भी चल गया। और प्रिंट यहाँ पर अगर मैं ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के साथ भी हेलो लिखता हूँ तो भी यहाँ पे चल जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है, हम दोनों की बात करेंगे कि सर सिंगल डबल और ट्रिपल इन दोनों में कोई तो डिफरेंस होगा। हाँ, उस कोई डिफरेंस की हम अब बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा यार प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद अगर आपने कभी भी गलती से डबल से स्टार्ट किया और सिंगल से क्लोज कर दिया तो एरर आएगा, और यहाँ पर एरर क्या आएगा, सिंटेक्स एरर। और आपको यहाँ पर दिखेगा कि एरो के साथ कि सर आपने कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ खेल किया है और वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो सिंपल से समझे यहाँ पर कि जिससे स्टार्ट होगा क्लोज भी उसी से ही होगा। अगर डबल से स्टार्ट है तो डबल से क्लोज, सिंगल से स्टार्ट है तो सिंगल से क्लोज। तो इसके सोल्यूशन पे क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि कभी मान लो यार अगर मुझे ये स्टेटमेंट लिखना हो कि रमेश सेड, ठीक है, यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, ये मुझे स्टेटमेंट देना हो,
तो अब आप इसको कैसे प्रिंट करेंगे, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करें और एक्सरसाइज तौर पे समझिए, टास्क समझ लें। आप ये कोशिश करें कि ये कोड लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो पॉज करें और ट्राई करें, ठीक है। सो आई होप अब आप लोगों ने ट्राई करा होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आ, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा, मैं प्रिंट, और इसके बाद ये जो कोड है, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, जो टेक्स्ट है कॉपी किया। और अब ध्यान दें, अगर मैंने यहाँ पे डबल लगाया और इधर डबल लगा क्लोज किया तो एंटर करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। रीजन क्यों? क्योंकि सर ये यहाँ पे स्टार्ट समझ रहा है और यहाँ पे क्लोज समझ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे क्लोज, सर यहाँ का स्टार्टिंग का है तो गड़बड़ हो गया है ना। तो अब देखो इसका क्या सोल्यूशन है, तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम। दूसरा सोल्यूशन क्या देखते हैं एक बार, जो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, कि सर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, रन करते हैं। तो ये चल तो गया, लेकिन हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ गया। सर इसका मतलब ये भी आंसर सही नहीं है, तो आंसर कैसे सही होगा? आंसर ये वाला सही है। अब देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ सिंगल से स्टार्ट किया, सिंगल से क्लोज किया और सिंगल से क्लोज किया। तो अब देखो सिंगल से स्टार्ट और सिंगल से क्लोज, तो इसके अंदर जो ये है ना, ये पूरा का पूरा एक टेक्स्ट बन चुका है, ठीक है। अब रन करेंगे तो आप देखें जैसा मैंने यहाँ पर आउटपुट में लिखा हुआ था वैसा ही आउटपुट यहाँ पे आया हुआ है। तो आई थिंक और आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी कि क्या इन्वर्टेड कॉमा के पर्पस हैं और क्या सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ की, जिसका नाम है इनपुट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे, हमने प्रिंट समझा, अब हम यहाँ पे इनपुट समझते हैं, ठीक है। तो इनपुट का सिंटेक्स क्या है? इनपुट है यहाँ पे कि इनपुट पैरेंथेसिस और इसके अंदर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि भाई यूज़र को पता तो चले कि इनपुट में देना क्या है। अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मली इनपुट लगाया और रन कर दिया, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या डालूँ मैं? पता है? नहीं पता ना। अब क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सर अब हमें कुछ बताओ तो कि हमें डालना है, कि हमें यहाँ पे अपना कोर्स का नाम डालना है, अपनी एज डालनी है, अपना नाम डालना है, क्या डालना है? तो फिलहाल यहाँ पर मैं डालता हूँ जय हिंद, ठीक है। कोई हमें पता नहीं है तो हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, ठीक है। तो चलिए इनपुट की मैंने यहाँ पे बात करी और प्रिंट इनपुट में डालने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, एंटर योर नेम, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पर अब सीधा सीधा प्रॉम्प्ट आ गया आपके लिए, यानी कि यूज़र के लिए, कि एंटर योर नेम। तो मैंने क्या बताया था कि प्रिंट कंप्यूटर बोलता है और इनपुट कंप्यूटर समझता है। ये मैं बहुत एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एंटर योर नेम, अब मैं कंप्यूटर को एक नेम देने वाला हूँ। क्या नाम दूंगा? मैं अपना नाम देता हूँ, सूरज सिंह, एंड एंटर करेंगे तो यहाँ पर नेम आ गया। अब यहाँ पर हम प्रिंट और इनपुट दोनों को मर्ज करके एक नया प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। नया तो नहीं है, बस हम दोनों को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ये जानना है, अब यहाँ पर मैं जो टास्क देने वाला हूँ, वीडियो पॉज करें और बताना उसका सोल्यूशन क्या होगा। कि आपको यूज़र से उसका नाम मांगना है, यानी कि आप अपना नाम डालें, लेकिन आउटपुट में क्या आना चाहिए? आउटपुट में आना चाहिए गुड इवनिंग। अब मान लीजिए आपका नाम राजू है तो गुड इवनिंग राजू। ऐसे ही आपका नाम परेश है तो गुड इवनिंग परेश। आपका नाम गीता है तो गुड इवनिंग गीता। तो जो भी आपका नाम है, गुड इवनिंग यू नेम, ठीक है। तो आपको इस तरह से निकालना है। वीडियो पॉज करें और करें ये टास्क। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा कि किस तरह से क्या क्या। और चलिए उसके सोल्यूशन के हम भी बात कर लेते हैं। तो जितना पढ़ा है मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। ध्यान रहे पाइथन के अंदर करने के मल्टीपल वेज हैं, लेकिन हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसी के बिहाफ पर हम करने की बात करने वाला है, ठीक है। तो सिंपल यार, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इनपुट लूंगा। इनपुट में लेने के बाद मैं लिखूंगा एंटर योर नेम, ठीक है। और ज्यादा तामझाम ना करते हुए मैं यहाँ पर प्रिंट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और सिंपल प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस का साइन, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ध्यान से, तो हमने अपने मैथ्स के अंदर पढ़ा हुआ है बॉड मास। बॉड मास का मतलब है पहले अंदर के ब्रैकेट्स क्लियर होते हैं। तो पहले अंदर के यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लियर होंगे, यानी कि पहले इनपुट फंक्शन क्लियर होगा कि वो आपसे नेम मांगेगा, और नेम मांगने के बाद गुड इवनिंग के साथ मर्ज हो जाएगा। और रन करते ही यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पे डाला अपना नाम और एंटर करते ही गुड इवनिंग सूरज। आप ये ट्राई करें और ध्यान रही, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, बैकस्लैश एन, वेरिएबल, एफ स्ट्रिंग, और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैंने यहाँ पर आपके प्रिंट और इनपुट का एक छोटा सा एक एग्जाम्पल एंड इंट्रो दिया हुआ है। इसको और डिटेल्ड में हम समझेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।